Antis were raised by the Haryana government the past couple of days. In fact, medical stores and shops and hotels were also raised in this bulldozer action. They said also significantly that this particular bulldozer action did not happen under procedure as established by law. So they said that many of these people were not given prior notices before their houses and shops were demolished. In fact, as we reported from the ground as well, many of these people did not receive any notice, and they said that we have nothing to do with the violence. We are just immigrants living here, we are migrant workers, and now we have nowhere to go. In fact, importantly, the court has also said that while saying that this action is being targeted at one particular community, they said that this is an act of ethnic cleansing, and the Haryana government is using force to demolish these houses, because remember, the bulldozer action started after no less than the Chief Minister of Haryana, Manohar Lal Khattar, said that these immigrants are have some link to the communal violence. This is what the Chief Minister had said. So it was with tacit approval from the top of the government that this bulldozer action was happening, and many of these immigrants said we have nothing to do with the violence. So these were the strong observations coming in from the Punjab and Haryana High Court. And very quickly, let me also tell you the latest that we are getting from Haryana. In fact, those shots that we are playing out are of Dipender Hooda and a Congress delegation, including former Chief Minister Bhupender Hooda, who was also expected to visit Nuh, but they were stopped from entering Nuh because the police said that Section 144 prohibitory orders for gathering are currently in place. So they were not allowed to enter Nuh. In fact, another party, RLD, their delegation was also going today, but they were stopped from entering Nuh as well. The administration's point of view is that this पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी हाईकोर्ट ने एक डिमोलिशन एक्शन को एथनिक क्लींजिंग का नाम दिया है। एथनिक क्लींजिंग ये एक बहुत गंभीर आरोप हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के ऊपर लगाया हुआ है। अभी मैंने आपको सुनाया कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट का ऑर्डर मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं। दी हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो उसमें से एक पार्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द इशू ऑल्सो अराइजेस whether the building belonging to a particular community are being brought down under the guise of law and order problem, and an exercise of ethnic cleansing is being conducted by the state. अब ये जो हादसा, जो एक वायलेंस कुछ दिनों पहले मेवात में, हरियाणा के मेवात में आप सभी लोगों ने देखा कि हरियाणा के मेवात में बहुत बड़ा वायलेंस हुआ, और एक बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली जो हर साल निकलती है, वो रैली का आयोजन किया था। और उस आयोजन में एक मोनू मानेसर, जिसके ऊपर 2 मुस्लिम लोगों के हत्या का आरोप है, उसने एक धमकी दी थी कि मैं आने वाला हूं। और उसके बाद में बिट्टू बजरंगी ने भी कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट किए जिससे कम्युनल टेंशन बढ़ा। इस यात्रा में हम सभी ने देखा वीडियो के माध्यम से कि हथियारबंद लोग बंदूकें, तलवार, ये सब लेके इस यात्रा में लोग सहभागी हुए और नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई, और वो हिंसा में कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों की हत्या की गई। इसके बाद में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसे एक यात्रा के ऊपर किया गया सोचा समझा हमला, ये नाम देकर वहाँ के मुस्लिम समुदाय के जो घर है वो घरों को डिमोलिश करने का काम शुरू किया। और पिछले 3 से 4 दिनों में, जब से ये हिंसा हुई, उसके बाद में वहाँ पे रेसिडेंशियल, कमर्शियल
जो वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनके जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर थे वो पक्की बड़ी बड़ी इमारतें, पक्की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इनको डिमोलिश करने का काम किया गया विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसीजर ऑफ लॉ, विदाउट गिविंग नोटिसेस ये काम किया गया, जिसका जो मेंशन है, जिसका जो न्यूज़ है वो न्यूज़ एक अखबार में, 2 अखबारों में, एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों अखबारों में छपी। और इस न्यूज़ के सहारे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन्होंने कल ये ऑर्डर पास किया है, जिसमें ये न्यूज़ का पूरा सहारा लिया गया। जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी था उसको भी इसमें, इस न्यूज़ में रिट्रेट किया गया, जिसमें बुलडोजर ये इलाज कर देंगे, ऐसा उसमें मेंशन किया गया। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। एक तरह से बिना नोटिस दिए जो ये बुलडोजर की कार्रवाई करने का जो एक ट्रेंड हमारे देश में शुरू हो गया है कि बिना नोटिस दिए कहीं पे भी कोई हादसा हो जाता है या कोई इंसिडेंस हो जाता है, कोई वायलेंस हो जाता है, तो मुसलमानों के घरों को बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर चलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोनू मनेसर का घर क्यों नहीं तोड़ा गया बुलडोजर के माध्यम से, या बिट्टू बजरंगी का घर क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि ये एक तरीके से जहां जहां बीजेपी का राज है, बीजेपी जहां जहां पावर में है, सरकार में है, वहां ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ ये बुलडोजर चलता है। और कहीं जब प्रेशर आ जाता है तब दिखावे के लिए कोई छोटा मोटा एक्शन, कोई हिंदू जिसने कुछ क्राइम किया हो, ऐसे के ऊपर ये कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉग्निजेंस जो है वो हाई कोर्ट ने लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का कि उन्होंने इस तरीके का जो एक बहुत गलत ट्रेंड, बहुत गलत जो एक तरीके से पिछले दिनों में बुलडोजर एक्शन ये शुरू हो गया था देश में, उसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई की है। और मेरा ये निवेदन है कि इसमें जो दोषी लोग हैं, जो सरकार दोषी है, उनसे ये पूरी भरपाई भी ली जाए। इनके जो घर तोड़े गए उन्हें पूरी तरह से भरपाई देनी जरूरी है। उन्हें इतनी भरपाई दी जाए कि वो अपना दूसरा आशियाना बसा सके। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से, धन्यवाद।